السلام علیکم فرینڈز، کتاب محل میں خوش آمدید۔ آج میں کالا جادو اور سایہ قسط نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہوں۔ مجھے دکھائیے کون لوگ ہیں، ذرا تھوڑی سی معلومات تو کی جائے، قصہ کیا ہے؟ بڑی حیرت کی بات ہے۔ وہ لوگ واپس آ گئے۔ گھر آ کر گلاب خان نے رجسٹر نکالا اور اس میں ان لوگوں کا لکھا ہوا پتہ وغیرہ تلاش کرنے لگا۔ اس نے رجسٹر میں وہ پتہ تلاش کر کے اسے شہباز کے سامنے پیش کر دیا اور شہباز نے اس کا لکھا ہوا پتہ پڑھا، پھر بولا، ابا چلو گے ذرا میرے ساتھ؟ ہاں کیوں نہیں چلوں گا، ذرا معلوم کرتے ہیں کہ کیا قصہ ہے۔ اور اس کے بعد گلاب خان نے بمشکل تمام تھوڑا بہت ناشتہ کیا، شہباز نے بھی اپنا لباس تبدیل کیا اور پھر وہ پتہ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ جس محلے کا پتہ لکھوایا گیا تھا اس میں اس نام کے کسی فرد کا کوئی نشان نہیں تھا۔ تھانے پہنچے تو انسپیکٹر سے ملاقات ہوئی، لیکن ان لوگوں نے اصلیت نہیں بتائی تھی، بلکہ ایسے ہی گورکن کی حیثیت سے تذکرہ کر دیا تھا کہ یہاں کسی کی تلاش میں آئے ہیں۔ یہ انسپیکٹر وہ نہیں تھا جو اس رات کو تدفین کے سلسلے میں ان کے پاس آیا تھا۔ سارا نام پتہ سب کچھ غلط تھا۔ دونوں ناکام واپس آ گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا بات ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ گلاب خان نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کچھ لمحوں کے لیے رفیق خود بھی متاثر ہو گیا تھا۔ مولوی ادریس علی بہت ہی نرم خو اور محبت سے گفتگو کرنے والے آدمی تھے۔ رفیق ان سے ملا۔ وہاں چند افراد مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر تھے اور ان سے اپنے مسائل بیان کر رہے تھے۔ ادریس علی کسی پر دم کر رہے تھے، کسی کو تعویذ دے رہے تھے اور کسی کو تسلیاں کہ اس کی مشکل دور ہو جائے گی۔ رفیق کی باری آئی تو اس نے دستے بستہ سر جھکا کر کہا، حضور والا، میں ایک اہم سلسلے میں چودھری شاہ نواز کی حویلی سے آیا ہوں۔ اچھا، چودھری صاحب کیسے ہیں؟ وہ تو بہت ہی اچھے آدمی ہیں، اکثر میرے پاس آتے رہتے ہیں۔ حضور والا، کچھ ایسی مشکلات پیش آ گئی ہیں کہ آپ کو حویلی میں بلایا گیا ہے۔ اوہ اچھا، بلایا گیا ہے۔ عزیز علی کسی قدر الجھے ہوئے لہجے میں بولے، پھر کہنے لگے، کب چلنا ہے؟ موٹر سائیکل لے کر آیا ہوں، بس حضور کے حکم کا انتظار ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی کچھ دیر کے بعد تمہیں بتاتے ہیں، ادریس علی نے کہا اور اندر حجرے میں چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر بولے، اصل میں یہاں کے کچھ انتظامات کرنا ہوتے ہیں، مگر ٹھیک ہے، ہمیں زیادہ وقت تو وہاں نہیں رکنا ہوگا۔ نہیں حضور، موٹر سائیکل حاضر ہے، بستی سے حویلی تک کا سفر بہت زیادہ نہیں ہے، سبحان گلی کا ہماری آبادی سے فاصلہ ہی کتنا ہے، اور پھر آپ کو واپس چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم انتظام کر آئے ہیں، چلیے ہم تیار ہیں۔ ادریس علی رفیق کے ساتھ موٹر سائیکل میں بیٹھ گئے اور موٹر سائیکل چل پڑی۔ راستے میں وہ صرف پڑھتے چلے جا رہے تھے، انہوں نے مزید کچھ نہیں پوچھا تھا۔ البتہ حویلی میں رفیق انہیں لے کر چور دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ادریس علی ٹھٹکے تھے، مگر اپنی نرم روی کے باعث انہوں نے رفیق سے کوئی سوال نہیں کیا تھا اور خاموشی سے اندر داخل ہو گئے تھے۔ رفیق انہیں کئی غلام گردشوں سے گزارتا ہوا آخرکار ایک بڑے کمرے میں لے گیا جو چودھرین کی خصوصی نشست گاہ تھی۔ شاہینہ بیگم نے بڑے خلوص کے ساتھ ادریس علی کا استقبال کیا تھا۔ تشریف رکھیے بابا صاحب، آپ کے آنے سے مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خوش رکھے۔ چودھری صاحب کہاں ہیں؟ ادریس علی نے سوال کیا۔ وہ اس وقت باہر گئے ہوئے ہیں، اصل میں مجھے آپ سے کام تھا۔ ادریس علی کے چہرے پر تھوڑے سے تردد کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر شاہینہ بیگم کو دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لی۔ جی فرمائیے بابا صاحب، پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ آپ میرے لیے جو کچھ کریں گے اس کے صلے میں آپ کو اتنا کچھ دوں گی کہ آپ اپنی زندگی کا بقیہ حصہ سکون سے کاٹیں گے۔ نہیں بی بی، اللہ کے کام اللہ ہی کے پاس رہنے دو، رزق دینے والا وہی ہے اور انسانی حاجات بھی وہی پوری کرتا ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو اپنی اصلاح کر لو کہ دینے والی ذات صرف ذات باری تعالیٰ کی ہے، ہمارے کام دوسرے ہیں۔ کبھی کسی کو کچھ دینے کا دعویٰ مت کرنا کیونکہ دلوانے والا کوئی اور ہی ہے۔ خیر اپنا کام بتاؤ، کیا چاہتی ہو؟ سخت مشکل میں ہوں بابا صاحب، آپ کو میری مدد کرنا ہی ہوگی۔ اس کمبخت چڑیل نے مجھ سے میرا سکون چھین لیا ہے، وہ میرے لیے عذاب جان ہے، میں اسے صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہوں۔ ایک بار پھر ادریس علی نے نگاہیں اٹھا کر شاہینہ کو دیکھا مگر کچھ نہ بولے۔
अर्शिया बेगम है उसका नाम। मेरे शोहर ने उससे दूसरी शादी कर ली है। मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन मेरे शोहर को औलाद की ज्यादा परवाह नहीं। अर्शिया से उन्होंने इसलिए शादी की क्योंकि वो एक खूबसूरत लड़की है। उसने मेरे शोहर के दिल पर कब्जा जमा लिया है। अब वो साहिब औलाद भी होने वाली है। उसके यहाँ पैदा होने वाली औलाद हमारी तमाम जायदादों की तनहा वारिस बनेगी। गोया मेरे हकूक पर एक नहीं बहुत से डाके डाले जाने वाले हैं। जाहिर है मैं भी इंसान हूँ। अव्वल तो एक औरत दूसरी औरत को वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोम ये सितम दर सितम मेरी जो हक तलफी हो रही है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको मेरा काम करना ही होगा। हमें बताइए चौधराइन, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? अर्शिया को इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। इसके यहाँ औलाद नहीं पैदा होनी चाहिए। आप कोई ऐसा अमल कीजिए कि वो मेरे शोहर को छोड़कर पागल हो जाए और उसके यहाँ औलाद पैदा ना होने पाए, या फिर वो जिंदगी से ही महरूम हो जाए। कोई ऐसा तावीज दीजिए जिससे। एक मिनट बीबी, एक मिनट। आप अगर तावीज की बात करती हैं तो जानती हैं तावीज़ों में क्या होता है। अल्लाह का नाम और उसकी बरकत से इंसान फला पाता है। कोई ऐसा तावीज तो हो ही नहीं सकता जिसके जरिए इंसान को हलाकत में डाला जाए, क्योंकि अल्लाह के कलाम में हलाकत नहीं है, इसमें तो बरकत ही बरकत है। और फिर बीबी, ये काम हमारा नहीं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये हराम है। आपने गलत हमें बुलवाया। वो अहमक आदमी कहाँ है जिसने हमें धोखा देकर यहाँ तक आने के लिए मजबूर किया? उसने हमें आपके नाम पर नहीं, चौधरी शाहनवाज के नाम से यहाँ बुलाया था, और चौधरी शाहनवाज से हमारे अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। क्या समझी आप? उस अहमक को बुलाइए, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब, मैं आपसे फिर ये बात कहती हूँ कि आप जितनी रकम चाहते हैं मैं आपको अदा करूंगी। आप मेरा ये काम कर दीजिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बीबी, तुम्हारी हालत दुरुस्त नहीं है। हमसे अहमकाना बातें ना करो। हम चौधरी साहब का बहुत एहतराम करते हैं, और तुम्हारा भी। क्या अहमकाना काम लेना चाहती हो तुम हमसे? बेवकूफ हो, इजाजत दो। मौलवी अदरीस अली अपनी जगह से उठ गए। शाहीना आगे बढ़कर उनके सामने आ गई। देखिए, आप अच्छा नहीं कर रहे। बीबी, हम तो अच्छा कर रहे हैं। आपको भी आखिरी बार समझा रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म पर कनात कीजिए। हमें एक बात का जवाब दीजिए आप, क्या चौधरी शाहनवाज ने आपको घर से निकालने की बात की है? नहीं। दूसरी शादी करने के बाद उन्होंने आपको तकलीफ दी है कोई? तकलीफ? इससे ज्यादा और क्या होगी कि मेरा शोहर दूसरी औरत के कब्जे में है। नहीं, मेरा मतलब है आपकी जरूरियात में कोई कमी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास खुद बेपनाह दौलत है। मैं भी किसी गिरे पड़े घर की नहीं हूँ। जब ये सब कुछ नहीं हुआ है तो आप आराम से जिंदगी गुजारिए। बिला वजह गलत रास्ते की जाने सफर कर रही हैं। इजाजत दीजिए हमें। और इसके बाद अदरीस अली तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गए। शाहीना मुंह खोलकर रह गई थी। चंद लम्हों तक वो शदीद गुस्से के आलम में वहीं खड़ी रही। उसके बाद उसने जोर जोर से आवाजें लगाईं। रफीक, रफीक। रफीक आसपास मौजूद नहीं था। एक मुलाजमा दौड़ती हुई अंदर आ गई। जी बेगम साहिबा। रफीक कहाँ मर गया? पता नहीं बेगम साहिबा, तलाश करके लाऊं? बुलाओ उसे, शाहीना बेगम ने कहा, और पांव पटकती हुई एक मिस्त्री पर आ बैठी। मुलाजमा पर दौड़ती गई थी। रफीक शायद फासले पर था। खासी देर लग गई उसे आने में। उस दौरान शाहीना गुस्से से बल खाती रही थी। जैसे ही रफीक अंदर आया वो उस पर बरस पड़ी। कहाँ मर गया था तू? क्या तुझे दूर जाना चाहिए था? अगर वो बुढ़ा मुझे कोई नुकसान पहुंचा देता तो? रफीक का मुंह हैरत से खुल गया। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, बाबा साहब चले गए? मैं तुझसे क्या कह रही हूँ? वो बेगम साहिबा, मैं तो आपका एहतराम ही करता हूँ। भला मेरी क्या मजाल थी कि मैं बाबा साहब और आपके दरमियान कोई मुदाखलत करता। मैं इतनी दूर चला गया था यहाँ से कि आप आराम से उनसे बात कर लें, और ये ना सोचे कि मैं आपकी बात सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो सिर्फ आपका एहतराम था बेगम जी। मगर हुआ क्या? और भला वो बुजुर्ग आदमी आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता था? तूने तो बड़े एहतमाम से मुझे बताया था कि सुभान गली में एक बाबा जी रहते हैं, बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं और सारे काम चुटकियां बजाकर हल कर देते हैं। तूने ये भी कहा था कि दौलत हर मर्ज की दवा होती है। ये किस बेवकूफ को पकड़ लाया था तू? जानता है वो क्या कह रहा था? आप बता दीजिए बेगम साहिबा। कह रहा था कि चौधरी शाहनवाज से उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ऐसे आदमी को तू मेरे पास ले आया था। अब इस बात की क्या जमानत है कि वो चौधरी साहब को सारी बात नहीं बता देगा?
रफीक थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह गया था, कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, वो तैयार नहीं हुए? अपनी बक किए जा रहा है। मैं कहती हूँ तूने मेरे लिए ये क्या मुसीबत खड़ी कर दी, मेरा तो सोना हराम हो जाएगा ये सोच सोच कर कि कहीं चौधरी साहब के कानों तक ये बात ना पहुंच जाए। रफीक, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा दफन कर दूंगी तुझे। इस तरह तूने मेरी नहीं बल्कि अर्शिया की मदद की है, इसके लिए राह हमवार की है। बेगम साहिबा, रफीक आपका गुलाम है, चौधरी साहब का नहीं, हर काम आपके लिए करता है, आप मुतमईन रहें। बस 2 लफ्ज में मुझे बता दें कि हुआ क्या है। बेगैरत आदमी अब भी इतने इत्मीनान से सवाल कर रहा है। हुआ ये है कि मैंने तेरे कहने पर दिल की बात उन्हें बता दी। वो मुझे नसीहतें करने लगे कि जैसे गुजर रही है गुजारूं, कोई ऐसा अमल ना करूं जो ये बात है। लेकिन बहरहाल आप परेशान क्यों हैं? मैं जो हूँ, मेरा ख्याल है वो सामने वाले दरवाजे से ही निकल कर गए हैं, मगर कोई फिक्र ना करें। रफीक, इत्मीनान मुझे उस वक्त होगा जब मेरे सामने उस शख्स की लाश आ जाएगी। समझ रहा है तू मेरी बात को? रफीक के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, यह बुरा काम भी मुझे ही करना था। चले ठीक है, उसकी लाश आपके सामने आ जाएगी, तब तो आपको इत्मीनान हो जाएगा। उस वक्त तक नहीं, जब सारा कच्चा छटा खुल जाए। मैं उससे पहले उसकी लाश को देखना चाहती हूँ। बस जी, आप फिक्र ना करें, मैं बंदोबस्त करता हूँ। अब जाऊं? गरक हो और लाश इस तरह ला कि किसी को अंदाजा ना हो। तौबा है, एक जुर्म छुपाने के लिए कितने जुर्म करना पड़ते हैं। तौबा तौबा। रफीक खामोशी से बाहर निकल गया था। अदरीस अली किसी कदर तैश में आ गए थे, वरना उनकी नरम खो फितरत कभी किसी के साथ सख्त कलामी की मुतहम्मिल नहीं होती थी। रफीक इन्हें पिछले दरवाजे से लेकर अंदर आया था, लेकिन वो सामने वाले दरवाजे से ही बाहर निकले थे। किसी ने खास तवज्जो नहीं दी थी, चुनाचे वो बाहर निकलने के बाद सीधे चल पड़े। थोड़ा फासला तय करने के बाद उस जगह पहुंच गए जहां चंद टांगे खड़े हुए थे। एक टांगे वाले के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मियां टांगे वाले, सुभान गली चलोगे? क्यों नहीं चलेंगे बुजुर्गों, खड़े ही इसलिए हुए हैं। टांगे वाले से किराया तय करके अदरीस अली टांगे में सवार हो गए और टांगा चल पड़ा। उनके ज़हन में थोड़ा सा तरद्दुद पैदा हो गया था। अगर चौधरी शाहनवाज को इस बारे में ना बताते तो इस बात का इम्कान था कि उनकी दूसरी बीवी अर्शिया बेगम को कोई नुकसान पहुंच जाता, और अगर बता देते तो इस बात की परेशानी थी कि चौधरी साहब कहीं शहीना बेगम को कोई सख्त सजा ना दे डाले। इस कशमकश का फैसला जरा मुश्किल नजर आ रहा था। टांगा सुभान गली का सफर कर रहा था। रास्ता कच्चा और नाहमवार था, दोनों अतराफ में खेत फैले हुए थे। टांगा वाला खामोशी से टांगा चला रहा था। काफी फासला तय हो गया। अब दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। खेत भी पीछे रह गए थे। खाल खुदरू दरख्त कच्चे रास्ते के दोनों अतराफ नजर आ रहे थे। कहीं कहीं गहरे घड़े थे। ये घड़े मिट्टी निकालने से बने थे। यहाँ से ट्रक मिट्टी ले जाया करते थे जो बर्तन बनाने वाले कारखानों में इस्तेमाल होती थी, या फिर उन छोटे मोटे कमहारों के लिए जो इस मिट्टी से बर्तन बनाकर इन्हें भट्टी में पकाते थे और बाजारों में फरोख्त कर देते थे। अभी टांगा सफर कर ही रहा था और सुभान गली खासे फासले पर थी कि अचानक अकब ही से एक बड़ी जीप नमूदार हुई जिसमें 8-10 अफराद सवार थे। जीप तेजी से धूल उड़ाती हुई चली आ रही थी। टांगे वाले ने उसकी रफ्तार देखकर जल्दी से घोड़े को बाएं सिमत काट लिया। बस इतनी जगह थी कि जीप अपने 2 पहिए थोड़े से नीचे उतारकर आगे निकल सकती थी, और जीप वालों ने ऐसा ही किया। वो जीप को आगे ले गए, लेकिन कोई 15 गज के फासले पर उन्होंने जीप रास्ते पर ही रोक दी और टांगे वाले को फौरी तौर पर लगामे खींचकर घोड़ा रोक लेना पड़ा। वो किसी कदर गुस्सीली निगाहों से जीप को देख रहा था, लेकिन उस वक्त उसके दिल में खौफ का बसेरा हो गया जब उसने जीप से उन तमाम अफराद को कूद कूद कर नीचे उतरते हुए देखा। एक निगाह में ही अंदाजा हो गया था कि ये सब जराइम पेशा किस्म के लोग हैं, शायद डाकू। टांगे वाले के रोंगटे खड़े हो गए। अक्सर इन इलाकों में डाके पड़ते रहते थे, लेकिन किसी टांगे वाले के पास से क्या बरामद हो सकता था? ज्यादा से ज्यादा लोग इसका घोड़ा टांगा ले सकते थे। वो फटी फटी आंखों से इन्हें देखता रहा। अदरीस अली ने किसी कदर उलझे हुए अंदाज में गर्दन निकालकर इन्हें देखा था और फिर कहा था, ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं? टांगे वाला अभी कोई जवाब नहीं दे पाया था कि वो लोग टांगे के चारों तरफ बिखर गए। उनमें से एक ने अदरीस अली को आस्तीन से पकड़कर नीचे खींचा। नीचे आ जाओ बाबा जी। और उसके साथ ही उन्होंने जरा सी ताकत लगाकर इन्हें नीचे उतार लिया। ओए टांगे वाले, टांगा मोड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ, उनमें से एक ने गराई हुई आवाज में कहा। अदरीस अली को एक तरफ घसीट लिया गया था।
बहरहाल वो कमजोर से आदमी थे, घसीटने से गिरते गिरते बचे। उन्हीं में से 2 अफराद ने इन्हें संभाल लिया। जिस शख्स ने टांगे वाले को टांगा मोड़ने का हुक्म दिया था, उसने पिस्तौल सामने करके 2-3 हवाई फायर किए और टांगे वाले के औसान खता होके वो घोड़े को चाबक मारकर मोड़ने की कोशिश करने लगा। तो वो शख्स घबराकर बोला, और अगर वापस जाकर तूने कोई बात मुंह से निकाली तो ये मत समझना कि हम तुम्हें तलाश नहीं कर सकेंगे। खामोशी से अपनी जगह जाकर खड़े हो जाओ और किसी से कुछ मत कहना। उसने फिर 2 फायर किए। घोड़ा मुड़ चुका था। टांगे वाले ने उसको बेदर्दी से मारना शुरू किया और कच्चे रास्ते पर घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ दूर निकल गया। इस दौरान अदरीस अली अपने आप को संभाल चुके थे। उन्होंने नरम लहजे में कहा, मुझसे जो कुछ चाहते हो उसकी तामील के लिए मैं हाजिर हूँ, मगर ये सब कुछ ना करो। बताओ मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत तो हम करेंगे तुम्हारी बाबा जी, फिक्रमंद क्यों हो, आ जाओ। उनमें से एक ने किसी कदर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा और फिर वो अदरीस अली को खींचते हुए आगे ले गए और इन्हें उठाकर जीप में फेंक दिया। तमाम अफराद जीप पर चढ़ गए और ड्राइवर ने जीप आगे बढ़ा दी। थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक और कच्चा रास्ता बाईं सिम जाता था और थोड़े फासले पर जाकर खत्म हो जाता था, लेकिन ये रास्ता एक आम रास्ते से हटकर था जिससे गुजरकर सुबहान गली पहुंचा जा सकता था, जहां एक घड़ा बना हुआ था जहां से मिट्टी निकाली गई थी। लेकिन ये घड़ा काफी वसी था और उसकी जमीन भी हमवार थी। वो लोग अदरीस अली को लेकर इस घड़े में उतर गए जो ज्यादा गहरा नहीं था। अदरीस अली सब्र सुकून के साथ उनकी हरकतें देख रहे थे। नीचे पहुंचने के बाद बस्तौर बरादर ने कहा, बाबा जी कलमा पढ़ लो, देखो कुदरत ने तुम्हारे लिए कब्र का इंतजाम कैसी अच्छी जगह किया है। कैसी जगह है? अदरीस अली के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने कहा, 2 गज जमीन जहां भी मिल जाए उस मालिक का करम है, हम भला उसकी मसलियत में कैसे दखल दे सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है और हम तुमसे ये सवाल नहीं करेंगे कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। बस जाने दो, क्या करोगे इन बातों को पूछकर। ऐसे काम हमें अच्छे बेशक नहीं लगते, लेकिन हम तो हुक्म के पाबंद हैं। तुम्हारी मर्जी है, फिर भी बता देते तो अच्छा था। बता दे भाई, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करनी ही चाहिए। रफीक को जानते हो? एक और शख्स ने कहा, हाँ रफीक ही तो हमें चौधरी शाहनवाज की हवेली ले गया था। बस ये समझ लो कि हम रफीक के आदमी हैं। तुमने शायद रफीक को कोई नुकसान पहुंचाया है, उसने हमें तुम्हारे कत्ल का हुक्म दिया है। अब ये बताओ कैसे मरना पसंद करोगे? गोली मार दें, गर्दन दबा दें, या? उस शख्स ने लिबास से एक छुरा निकाल लिया। अदरीस अली हंसने लगे, फिर बोले, नहीं अजीजम, मौत का तयन इंसान खुद कभी नहीं कर सकता, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। तो फिर तुम्हें ज़बा कर देना ज्यादा अच्छा होगा, क्या समझे? उसने कहा और छुरा लेकर आगे बढ़ा, लेकिन इसी वक्त ऐसा लगा जैसे उसके गाल पर किसी ने जोरदार थप्पड़ मारा हो। थप्पड़ भी ऐसा कि वो अपना तवाज़ुन न संभाल सका और कई फुट ऊंचा उछलकर दाहिनी सिमत गिर गया। उसकी आंखें खौफ से फैल गई थीं। दूसरे लोग भी चौंक कर अदरीस अली को देखने लगे थे। वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इस बूढ़े शख्स में इतनी ताकत कहां से आ गई कि उसने इतने ताकतवर आदमी को जमीन चटा दी। ये अंदाजा वो भी नहीं लगा पाए थे कि थप्पड़ खुद अदरीस अली ने नहीं मारा था, बल्कि किसी नादीदा वजूद ने यह अमल किया है। अलबत्ता इन्हें थोड़ी ही देर के बाद सही सूरत हाल का अंदाजा हो गया था, क्योंकि एक खौफनाक घूंसा उनमें से एक के जबड़े पर पड़ा था और उसके दांत हिलकर रह गए थे। फिर उन सब की बुरी तरह पिटाई होने लगी। अदरीस अली थोड़े से पीछे हटकर खड़े हो गए थे। इतने सारे अफराद गधों की तरह पिट रहे थे और पीटने वाला वजूद नजर नहीं आ रहा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। 3 अफराद फुर्ती से भागकर घड़े से ऊपर पहुंच गए। बाकी 5 अफराद अब भी बुरी तरह मार खा रहे थे। उनमें से कई के मुंह से खून बह रहा था, 2-4 की आंखों पर निशान पड़ चुके थे और वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर करा रहे थे। ऊपर जीप स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी तो वो पांचों भी चौंके और फिर इस तरह गालियां बकते हुए गाड़ी से ऊपर जाने के लिए आगे बढ़े कि देखने वाले को हंसी आ जाए। उनमें से कई तो ऐसे थे जिनकी आंखें जख्मी हो गई थी। वो ऊपर चढ़ रहे थे और नीचे गिर रहे थे और अदरीस अली एक तरफ खड़े मुस्कुरा रहे थे।